Hello friends, earlier we have discussed about the dimension formula as well as uses of dimension formula. In uses of dimension formula we have discussed in three parts. In first part we can say there is a relation between the two units of the physical quantity, like we can say 1 Newton is 10 raised to 5 dyne. In second use we have checked the dimensional consistency, means dimensional validity. A given equation is dimensionally correct or not. In third part of the dimension formula, dimensional analysis, we have to derive the equation, means to derive the relation between the physical quantity in terms of other physical quantities. Already we have discussed these all things regarding with the dimensional formula, a dimensional formula as well as uses of the dimensional formula. Now, today we are going to discuss about the distance between, if we want to measure the distance between Earth and any planet, then there is no any direct method to measure the distance between Earth and any type of planet. Just consider the Jupiter. If we want to measure the distance between Earth and planet Jupiter, then there is no any direct method to measure the distance between them. Then we have to use the parallax method. कि जो भी ऐसे बोलेंगे इनडायरेक्ट मेथड, इट्स कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड. सबसे पहले यह मेथड डेवलप हुई टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड एनी प्लैनेट. Nowadays, in recent days, this method is not in use because nowadays, due to the technology, the one system we can say radar. There is a radar system is there, and in radar system, due to the use of radar system, we can measure the distance between Earth and any planet. If I am giving brief idea about the radar system, then from the Earth, one rays are sending towards to the planet. जिस planet का हमें distance measure करना है, उस planet पर ऐसे electromagnetic waves send करते हैं through the instrument, जो ऐसे particular direction में, जो planet उस direction में send करेंगे, वहाँ planet के surface पर से वो reflect होंगे. And again they received by the same instrument. In radar system, initially we are sending the electromagnetic waves towards the particular planet. From the surface of the planet, again they reflect back. अब इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, जो भी इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन आर इन सेम डायरेक्शन, इसलिए सेम डायरेक्शन में आएंगे. अगेन दे रिसीव्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट. अब वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो फिक्स है. डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड एनी प्लैनेट इज आल्सो फिक्स. देन जैसे रेज हम सेंड करें और वापस रिसीव होंगे, वो जो टाइम लगेगा वो बोलेंगे हम डबल टाइम होगा. जो ऐसे अर्थ टू द प्लैनेट का पर्टिकुलर टाइम और प्लैनेट से वापस, उन दोनों में टाइम ड्यूरेशन सेम होता है. तो जैसे सेंड करें और रिसीव हो, वो जो टाइम हम कंसीडर करें उसका हाफ करना है हमें. मतलब अगर हम बोले कि हमें ऐसे 1 आवर में वापस जो भी रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर मिलते हैं, तो टाइम कंसीडर करो हाफ एन आवर, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. देन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. और ये जो टाइम है वो रिसीविंग का टाइम का हाफ, क्योंकि हमें एक साइड का डिस्टेंस करना है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड एनी प्लैनेट. इसकी स्पीड फिक्स है, जो टाइम ड्यूरेशन उसको हाफ करो, इजीली वी कैन मेजर. तो जो डिस्टेंस है नाउअडेज द डिस्टेंस मेजर्ड यूजिंग रडार सिस्टम, लेकिन उस सिस्टम से जो डिस्टेंस मिला वो पैरेलैक्स मेथड से ऑलमोस्ट सिमिलर. मतलब जो भी सबसे पहले पैरेलैक्स मेथड डेवलप हुई कि जब कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, यूजिंग मैथमेटिक्स
indirect method. Using indirect method, how can we measure the distance between Earth and any particular planet? For that, consider this is our Earth, and here there is any planet. Just consider the planet as a point-like object. यहाँ से अगर देखें तो डिस्टेंस बहुत लार्ज है, तो ये जो प्लेनेट है वो पर्टिकुलर एज ए पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। अब यहाँ से हमें इसका डिस्टेंस मेजर करना है, तब ये जो एक्सपेरिमेंट करना है विद द यूज ऑफ 2 पर्सन्स, मतलब यहाँ पर A point and B point which are called diametrically opposite points of the earth। यहाँ से मतलब जो भी हम बोलेंगे पैरेलैक्स मेथड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड एनी प्लेनेट, तब जो 2 पर्सन्स हैं उन लोगों को डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पर रहना चाहिए। दैट्स व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन 2 पर्सन्स इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द अर्थ। यहाँ से जो पर्सन है वो यूजिंग टेलीस्कोप ये प्लेनेट को देखेगा। दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ विजन ऑफ द पर्सन ए। बी है वो भी सेम प्लेनेट को ही देखेगा यूजिंग टेलीस्कोप। दिस इज द लाइन ऑफ साइट ऑफ बी। तो यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा, जस्ट से एज ए थीटा। We can say distance between Earth and planet is capital D. Just use always diameter, the terminal is small d. Distance between Earth and planet as capital D, and angle is theta. Then we know that angle is equal to r upon radius, that already we have discussed in plane angle. Angle is equal to r upon radius. Then angle theta is equal to r. r मतलब हुआ यहाँ पर diameter d, and the radius is considered as capital D. तो always याद रखो यहाँ पर कि r जो है वो always diameter के टर्म्स में आएगा और radius जो है वो always in terms of distance. Then if we want to measure the distance d, then easily we can take the ratio of diameter to the angle. लेकिन the question is that how can we measure the angle theta? This angle is on the planet पर है, तो और ये तो line of sight है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कैसे बनेगा, मतलब मेजर कैसे करेगा, ये थीटा एंगल कैसे मेजर करेगा। तब यहाँ पर हमें मैथमेटिक्स का यूज लेना होगा। यहाँ से अर्थ के सेंटर से एक लाइन अगर हम सोच रहे हैं विच इज पास थ्रू द प्लैनेट, और जो ए पर्सन है उसने अपना टेलीस्कोप अर्थ की हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कितना एंगल बनाया, से θ1। बी जो पर्सन है उसने वहां पर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया, से θ2। देन यूजिंग मैथमेटिक्स वी कैन से यहाँ पर जो भी अल्टरनेट एंगल बनेगा, दिस इज आल्सो θ1, दिस इज आल्सो θ2, z बनेगा तो देन θ इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2। So easily we can measure the angle theta which is nearer to the planet. That means A and B person जो भी एंगल बनाएंगे with respect to the horizontal surface वो एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं। फर्स्ट वाला बोले कि I have made angle 10 डिग्री, दूसरा वाला बोले कि मेरा एंगल जो है वो 20 डिग्री है। देन टोटल डिग्री ऐसे 30 डिग्री, और 30 यहाँ पर अगर हम यूज कर दे then easily we can measure the distance between Earth and any planet. Now from this, if you want to measure the diameter of the planet,
Initially, we have discussed how to measure the distance between Earth and planet. Then, now our interest to measure the distance. Now our interest to measure the diameter of the planet. So diameter of the planet कैसे करें? Then consider this one is our Earth, and this one is the diameter. अब अर्थ के सरफेस से कोई एक साइड पर लाइन ऑफ विजन रखो, मतलब टेलीस्कोप को प्लेनेट के एक साइड पर सेट करो, देन उसकी दूसरी साइड पर सेट करो, तब ये बोलेंगे हम डायमीटर ऑफ द प्लेनेट। और जैसे हम यहाँ पर टेलीस्कोप को कोई भी एक पॉइंट से ऐसे यहाँ से ऐसे रोटेट करें, देन इजीली वी कैन मेजर द एंगल अल्फा। से ऐसे अल्फा थीटा भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्फा का जो नाम है वो एंगुलर डायमीटर। This angle is called angular diameter. Now, this is the distance between Earth and the planet. Then use the same formula. Angle is equal to R upon radius as a capital D. Then if you want to measure the diameter, then it is alpha into D. फॉर्मूला सेम ही है, तुम यहाँ पर थीटा बोलो और डी को सब्जेक्ट कर दो, डायमीटर करना है, देन थीटा इनटू डी ऐसे अल्फा इनटू डी। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, ऐसा लिखा होगा कि एंगुलर डायमीटर इज सो एंड सो, कुछ ऐसा मेजरमेंट होगा। तो ऐसे याद होना चाहिए कि एंगुलर डायमीटर नथिंग बट एंगल। अब अगर हमें डायमीटर चाहिए तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस चाहिए तो डायमीटर से जो एंगल है वो डिवाइड करो, देन यूजिंग द सेम फॉर्मूला एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस वी कैन मेजर डिस्टेंस एज वेल एज डायमीटर ऑफ द प्लेनेट। लेकिन डायमीटर करें उसके लिए ये भी नोन होना चाहिए। इसका मतलब जिस प्लेनेट का हमें डायमीटर मेजर करना है उसी प्लेनेट का सबसे पहले डिस्टेंस मेजर कर दो। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू दिस एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट होगा, ये डी मिल जाए, उसके बाद हम उसी प्लेनेट का डायमीटर हम कर सकते हैं। देन यूजिंग दिस एक ही फॉर्मूला है, ऑलवेज आर यूज करो डायमीटर, रेडियस एज ए डिस्टेंस, देन एंगल इज इक्वल टू वी कैन से डायमीटर अपॉन डिस्टेंस। डायमीटर करना है तो उसको सब्जेक्ट कर दो, डिस्टेंस करना है उसको सब्जेक्ट करो। देन ये जो दो फॉर्मूला है वैसे एक ही फॉर्मूला है और उससे हमें डायमीटर और उसका डिस्टेंस मिल जाएगा। नाउ द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो भी एंगल है, एंगल तुम्हें गिवन होगा डिग्री में, बट इन प्लेन एंगल वी हैव डिस्कस इट्स यूनिट इज रेडियन। तो जो भी फिजिक्स में हमें कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन रेडियन एंड इट विल बी गिवन इन डिग्री, देन वी शुड डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। एट दैट टाइम जस्ट रिमेंबर 180 degree is pi radian. The most important thing, the relation between degree and radian, it is 180 degree is equal to pi radian. तब जो pi की वैल्यू है वो 22/7, अदरवाइज यू कैन से इट इज 3.14। कोई भी वैल्यू तुम यूज कर सकते हो, यूजुअली वी विल यूज 3.14। देन वन मोर टाइम 180 डिग्री इज pi radian। उसके हिसाब से तुम्हें अगर कोई भी ऐसी डिग्री दे रखी है कि 40 डिग्री एंगल गिवन है यहाँ पर, या यहाँ पर कोई भी एंगल 5 डिग्री गिवन है, देन इजीली वी कैन डिराइव इन रेडियन। दूसरा भी बोल सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अगर ये याद है देन यूज द लीनियर रिलेशन।
कि 1 डिग्री इज 5 रेडियन, देन 180 डिग्री इज 5 रेडियन, देन 1 डिग्री के लिए कितना? तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इमेज करें कि 1 डिग्री के लिए कितना होगा, तो यही आंसर मिलेगा हमें पाई अपॉन 180। तो 1 डिग्री इज पाई अपॉन 180 रेडियन। तब जो भी हमें डिग्री गिवन है वहां से उसका रेडियन हमें मिल जाएगा। चलो एक और कि 1 डिग्री इज 60 मिनट, ये जो एक लाइन है उसको हम बोलेंगे मिनट, कि 1 डिग्री इज 60 मिनट। बट ये जो मिनट है वो टाइम वाली नहीं है, इस रिगार्डिंग विद द एंगल। तुम्हारे पास अगर प्रोटेक्टर है तो प्रोटेक्टर में 1 डिग्री का एंगल देखो कितना होगा। जैसे बोलेंगे ये ऐसे कोई भी दो लाइन होगी तो दो लाइन के बीच का एंगल 1 डिग्री बोलेंगे। अब इसके 60 इक्वल पार्ट करो तो एक पार्ट है वो 1 मिनट, 1 डिग्री इज 60 मिनट। एट दैट टाइम 1 मिनट इज 60 सेकंड, मतलब ये सेकंड जो भी है वो ऐसे टाइम वाली नहीं है, रिगार्डिंग विद द एंगल। तब बोल सकते हैं हम कि 1 डिग्री इज 3600 सेकंड। तो ये भी रिलेशन याद करो, कोई भी ऐसे टर्म्स में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। अब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि 1 सेकंड जो है वो कितना रेडियन होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन कि 1 सेकंड इज हाउ मच रेडियन, तो डायरेक्ट सेकंड और रेडियन का हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है। तब जो सेकंड है उसको हमें पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर डिग्री मिला देन इजीली वी कैन कन्वर्ट इन रेडियन। तो हमारे पास रिलेशन है 1 डिग्री इज 3600 सेकंड। देन इनिशियली just convert 1 second into degree, that is 1 upon 3600 degree. Just use the linear relation, 1 degree is 3600 second. तो 1 second जो है वो कितना होगा, जैसे यहाँ पर अगर हम बोल रहे कि 1 डिग्री इज 3600 सेकंड, तो 1 सेकंड जो है वो कितना होगा, यही आंसर मिलेगा। अब 1 सेकंड 1 divided by 3600 degree, 1 degree is pi upon 180 radian, then multiply with pi upon 180, ये जो आंसर मिलेगा वो रेडियन में। और इसका आंसर तुम करो, इट इज नियर अबाउट 4.85 10 to the power -6 रेडियन, 4.85 10 to the power -6 रेडियन, कि 1 सेकंड इज 4.85 10 to the power -6 रेडियन। तो इसकी प्रोसेस ये है, मतलब अगर डिग्री है तो डायरेक्ट इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, रेडियन में आंसर मिलेगा। अब अगर सेकंड में दिया है तो पहले डिग्री में कन्वर्ट करो, फिर पाई बाय 180 से रेडियन में कन्वर्ट होगा। चलो एक और एग्जांपल है कि अगर मैं बोलूं 1 मिनट जो है वो कितना रेडियन होगा, देन सबसे पहले 1 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करो, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 60, बिकॉज 1 डिग्री 60 मिनट, तो 1 मिनट है 1/60। और अगर इसी को तुम पाई अपॉन 180 से डिवाइड कर दो, वो मिलेगा हमें रेडियन। तो ये जो वो तुम्हारे लिए होमवर्क में कि पाई अपॉन 60 एंड 180 जो है ऐसे उसका रेशियो जो है रेडियन में कितना मिलता है, जैसे ये कर दिया ऐसे ही ये होगा। इन शॉर्ट एंगल हमें मिनट, डिग्री या सेकंड किसी में गिवन है, सबसे पहले उसको डिग्री में कन्वर्ट करो और फिर पाई बाय 180 को मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट करो, और फिर जाकर ये जो इक्वेशन है वहां पर एंगल की जगह रखना है, बिकॉज फिजिक्स में कैलकुलेशन रेडियन के साथ उसका रिलेशन है, नॉट विद द डिग्री, मिनट और सेकंड।
वहां से डिग्री सेकंड दिया है, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, आंसर रॉन्ग मिलेगा। बिकॉज इन फिजिक्स, इन कैलकुलेशन, यूनिट मस्ट बी इन रेडियन। रेडियन है तो ही उसकी कैलकुलेशन होगी, इसीलिए हमने ये पूरा एक डिस्कशन किया। अब थोड़े बहुत रिलेशंस के रिलेटेड, मतलब डिस्टेंस से रिलेटेड, अगर हम स्मॉल डिस्टेंस बोले, देन वी कैन से 1 angstrom is 10⁻⁻10 meter. We know that 1 meter is 100 centimeter. That's why it is 10⁻⁸ centimeter. तो आइदर मीटर रिलेशन में ये, फिर 1 फर्मी या फैक्टो बोलेंगे जिसको, इट इज 10⁻15 मीटर। सेंटीमीटर में चाहिए तो वो भी कर दो। देन स्मॉलर यूनिट 1 मिलीमीटर, 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोमीटर, 10⁻⁶ मीटर। 1 नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर। 1 पिकोमीटर, 10⁻12 मीटर। तो ये याद करो, मिलीमीटर -3, माइक्रोमीटर -6, नैनोमीटर -9, पिकोमीटर -12। ऐसे ही हाई यूनिट्स 1 किलोमीटर, 10⁻³ मीटर। 1 मेगामीटर, 10⁻+6 मीटर। 1 गीगामीटर, 10⁻⁹ मीटर। 1 टेरामीटर, 10⁻+12 मीटर। तो ये हायर बोलेंगे, ये स्मॉलर यूनिट, इसको भी ऐसे लर्न करना। तो ये जो भी स्मॉलर एंड हायर यूनिट्स के बाद, मतलब ये सब टर्मिनोलॉजी याद करो। अब ऐसे ही अगर हम बोलते हैं और डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU कॉल्ड एज ए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड एज ए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज 1.496 into 10⁻11 meter. This is the average distance between sun and earth. अर्थ जो है सन के अराउंड जो भी रिवॉल्यूशन करता है उसका ऐसे बोलेंगे परफेक्ट सर्कुलर पाथ नहीं है, थोड़ा बहुत ओवल से, कहीं पर स्मॉलर डिस्टेंस होगा, कहीं पर हायर रेडियस हो सकता है, लेकिन इन सभी का हम एवरेज डिस्टेंस बोल दें। एंड एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड एज ए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और वो है 1.496 into 10⁻11 मीटर। ऐसे ही 1 लाइट ईयर, तो 1 लाइट ईयर इज 9.46 10⁻15 मीटर। तो ये भी याद रखना है। ऐसा बोल सकते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। इट इज 9.46 10⁻15 मीटर। ऐसे ही 1 पीसी, जिसको बोलेंगे 1 पार्सेक, तो 1 पार्सेक इज 3.08 10⁻16 मीटर। तो ये जो भी ऐसे रिलेशंस है वो याद करने हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी ऐसे रिलेशन पूछ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं कि 1 AU इज इक्वल टू हाउ मच लाइट ईयर, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले, तब करना क्या है, ये जो लाइट ईयर है ये ब्लैंक की जगह पर जस्ट यू इमेज एज x, और ये लाइट ईयर x के मल्टीप्लाई में होगा, उसको डिवाइड में ले लो, मतलब 1 AU डिवाइडेड बाय लाइट ईयर, मतलब 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू x, जो आंसर मिलेगा वो x का। नाउ वी नो दैट कि 1 AU इज 1.496 10⁻11, 1 लाइट ईयर इज 9.46 10⁻15, जो आंसर आएगा वो x का होगा।
बाय द सेम वे अगर ऐसा पूछ रहे हैं कि 1 pc जो है वो कितना AU होगा, तो उसके लिए AU जो है वो डिवाइड में ले लो, 1 पार्सेक ये वैल्यू डिवाइडेड बाय AU की वैल्यू, तुम्हें उसका आंसर मिलेगा। बाय द सेम वे अगर पूछ रहे हैं 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो कितना फर्मी होगा, 1 एंगस्ट्रॉम 10 मीटर, ये -15 मीटर, इसको ऐसे डिवाइड में ले लो, तो 1 एंगस्ट्रॉम बोलेंगे -10 10 मीटर और फर्मी -15 मीटर। जैसे डिवाइड करो दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए, यहाँ पर सभी मीटर है, डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, सेंटीमीटर और मीटर डिवाइड नहीं करना है, बोथ द यूनिट शुड बी इन सेम यूनिट, देन इट इज 10⁻² + 5, तो बोल सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻² फर्मी। बाय दिस वे जो भी रिलेशंस मिले गिवन है उसका तुम रिलेशन